Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I discuss with you the topic of class 11 and the subject is business studies and topic of our class is other apex banking institution. Other apex banking institutions are various type. First one is central bank. Second one is Exim Bank. Third one is NHB National Housing Banking, Industrial Reconstruction Bank of India, Industrial Reconstruction Bank of India, and the last one is NABARD. These are the apex banking institution: Central Bank, Exim Bank, Export Import Bank, NHB National Housing Bank, IRBI Industrial Reconstruction Bank of India, and NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development. These are the other apex banking institution. Now I discuss with you all the other apex banking institution with you in detail. The first one is Central Bank. Central Bank, you already know about the Central Bank. Central Bank is the main bank of every country which control every type of the banking activity and the banking activity of the various type of the bank. Like as the various type of bank means commercial bank, either it is the public sector bank, private sector bank, any bank, all the activity related to the banking are controlled by the central bank of a country. The central bank play a very important role to control the banking system as well as the economic development of the country. For the development of economy of any country, the central bank play a very important role, as well as the central bank play various type of the functions like as the to control various activities of the bank, various activities of बैंक है उन सभी को कंट्रोल करता है. इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करता है. Either the currency of a particular country is issued by the particular bank is the central bank. The central bank is that bank which control every type of the activity played by the bank, conducted by the bank, as well as issue of the currency, and play important role for the economic development of the country. Now, the central bank of a particular country means that in India, our Reserve Bank of India, RBI. RBI is known as the Central Bank of the India. This bank is known as the government of bank. This bank perform various type of the activity as the bank of the government. RBI जो है आपके इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरी कंट्री में गवर्नमेंट के बैंक के तौर पर रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपकी कंट्री में जो भी करेंसी इशू करनी है वो करेंसी आरबीआई इशू करेगा. वेरियस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज है बैंक से रिलेटेड वो एक्टिविटीज भी कौन कंडक्ट करता है, कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई. हाँ, ये एक स्पेशल बात है, आरबीआई डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करता. कोई भी जनरल पब्लिक अगर आरबीआई के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है. आरबीआई वेरियस टाइप के कमर्शियल बैंक जो भी हैं, वेरियस टाइप के आपके बैंक है, उन सभी को कंट्रोल करता है. अगर बात की जाए इंडिया के अलावा और भी आपके बैंक हैं, उस बैंक में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं. अमेरिका का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व बैंक बोला जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका. तो ये आपका सेंट्रल बैंक है. इंडिया का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक. सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो है वो स्वीडन में खुला था
इस बैंक ने 1668 के अंदर आपका जो है सेंट्रल बैंक खुला था, बट बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसी ने ही बैंकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग की थी। बट सबसे पहला बैंक जो है वो स्वीडन में ओपन हुआ था, सेंट्रल बैंक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज दैट Exim Bank. Exim means the export import bank of India. Export import bank of India. This bank is established on 1st January 1982. नेम से ही मेंशन है, एक्जिम बैंक जो है वो किसी भी टाइप की आपकी कंट्री के अंदर जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में या तो बाइंग होगा या आपका सेल होगा, मींस जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड उसको कंट्रोल करने का काम जो है आपका कौन सा बैंक करता है, एक्जिम बैंक। इसके साथ साथ एक्जिम बैंक वेरियस टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉरेन ट्रेड के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, या फिर आपके कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है जो आपकी फॉरेन ट्रेड के अंदर हेल्प करते हैं, तो उनको रीफाइनेंस करने का काम करता है। टाइम टू टाइम आपका जो एक्जिम बैंक है इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कि वो आपके फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करे। मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का काम एक्जिम बैंक करता है। मींस refinancing related to the export and import provided by the Exim Bank to the financial institution as well as the commercial bank. It is the Exim Bank, Export Import Bank of India. इसका मेन वर्क फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को, या ये कह सकते हो फॉरेन ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। या किसी भी टाइप का कोई भी हमारा हर्डल है फॉरेन ट्रेड के अंदर, तो उस हर्डल को रिमूव करने का काम भी हमारा एक्जिम बैंक के थ्रू ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका थर्ड वन, अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज दैट नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी हमारी 1988 में। 1988 में हमने नेशनल हाउसिंग बैंक को क्या कर दिया था, एस्टेब्लिश किया था। इसका जो मेन वर्क है वो कोई भी आपकी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई भी घर बनाना है उसके लिए लोन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। बट ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती है। कोई भी जनरल पब्लिक है अगर उसको अपना घर बनाना है तो उसके लिए हाउस लोन जो है प्रोवाइड करने का वर्क जो है नेशनल हाउसिंग बैंक से होगा। एनएचबी जो है वेरियस टाइप के जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कॉमर्शियल बैंक है, जो भी बैंक है हमारे जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउस लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको रीफाइनेंस करने का काम करेगा। कहने का मतलब रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई भी घर बना रहा है हाउस लोन, तो उसको रीफाइनेंस करने का काम मींस एनएचबी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हाउस लोन ले रखा है, उस हाउस लोन को वो इंक्रीज करवाना चाहता है, तो उसको भी रीफाइनेंस करने की फैसिलिटी जो है वो एनएचबी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था सिर्फ किस पर्पज के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, कि जनरल पब्लिक को हाउस लोन दिया जाए, वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए उसको यूज करे और अपना रेजिडेंस बनाए। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका फोर्थ वन, द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसको IRBI बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कोई भी हमारी सिक बिजनेस यूनिट है, किसी भी टाइप की सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उस सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को दोबारा से स्टार्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा वर्क जो है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिक बिजनेस यूनिट का मतलब है ऐसी बिजनेस यूनिट जो लॉस में जा रही है या फिर ऐसी बिजनेस यूनिट जिसको हम बंद करने वाले हैं।
जो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुकी है जिसको अब क्लोज करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक इस टाइप की कोई भी इंडस्ट्री जो लॉस में चल रही है लॉन्ग टाइम से, या फिर को उसका ऐसा टाइम आया जिसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो उस केस में ये बैंक जो है आपका इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, वो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट की ओनरशिप अपने हाथ में लेगा। इसकी जो मैनेजमेंट है, सारा वर्क जो है आपका, इसको कंट्रोल करने का काम IRBI करता है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करेगा? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर या किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी सिग इंडस्ट्रियल यूनिट है मीन जो आपकी कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है या ऐसी सिचुएशन में आ गई जिसको वाइंड अप करना पड़ेगा, तो वहां पर ये पर्टिकुलर बैंक है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, सिग इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या करता है? उनको मैनेज करता है, उनकी ओनरशिप अपने हाथ में लेगा और उनको जितना भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस को पुट करके उस इंडस्ट्रियल यूनिट को दोबारा ट्रैक पर लेके आने का काम जो है वो क्या करती है? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नाउ द लास्ट वन इज NABARD। The National Bank for Agriculture and Rural Development। ये हमारा NABARD है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाम से ही मेंशन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ये बैंक जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया गया था एंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी आपके बैकवर्ड एरियाज हैं उन बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए या फिर किसी भी टाइप से आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको रिमूव करने के लिए, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए हमारा NABARD एस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ साथ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के सेंट्रल बैंक की बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सेंट्रल बैंक है उसको NABARD ही बोलते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, लोन से रिलेटेड फाइनेंशियल हेल्प, वो सारा काम किसके थ्रू होता है? NABARD। तो NABARD वेरियस टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं, उन सभी से रिलेटेड ये क्या करेगा? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ NABARD क्या करता है? अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, स्पेशल कमोडिटी है, उन स्पेशल कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने के अंदर भी हमारा NABARD जो है वो हेल्प करेगा। अब जो स्पेशल कमोडिटी है वो आपकी किससे रिलेटेड होगी? वो पर्टिकुलर जो भी स्पेशल कमोडिटी है वो हमारी किससे रिलेटेड होगी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, तो उसको करता है। इसके साथ साथ NABARD क्या करता है? रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या फिर हमारा जो भी कॉमर्शियल बैंक है जिनका मेन काम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, या फिर आप ये कह सकते हो जिनका मेन वर्क जो है बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना है, तो NABARD जो है उनको दोबारा से फाइनेंस प्रोवाइड करता है कि किसी भी टाइप की कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। इवन देन जो आपके कॉमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक है, उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फाइनेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ उससे क्या होगा? आपका उनको फाइनेंस मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस टाइप से NABARD जो है वो सेंट्रल बैंक है एग्रीकल्चर का, हर टाइप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, या किसी भी टाइप से आपकी कोई स्पेशल कमोडिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको एक्सपोर्ट करने का काम करता है। टुडे आई डिस्कस विद यू अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल बैंक, Exim Bank, NHB National Housing Banking, as well as the Industrial Reconstruction Bank of India, as well as NABARD. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.